جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پھر. اور کون ہے اقرار بھائی ہمارے ساتھ؟ یہ اپنی نوعیت کی بہت ہی الگ آرگنائزیشن ہے اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ایسے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. الفت فاؤنڈیشن ہر برس ہمارے نیکی سیگمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. مقصد یہ ہے، اور اگر آپ مقصد جانیں گے تو ایک بچے کے والد کی حیثیت سے بڑی خوشی ہوگی آپ کو، کہ پاکستان کے اندر وہ بچے کہ جو سرجیکلی ٹریٹ ہو سکتے ہیں. مشن یہ ہے کہ بس کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہ ہو جو اس ٹریٹمنٹ کے بغیر رہ جائے. چہ جائے کہ بدقسمتی سے اس ملک کے اندر بہت سارے بچے ان کو شاید ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتا، اور اس سرجری کے اور پروسیس کے بغیر ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ظاہر ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے. ہم بہت شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ اس آرگنائزیشن کی، اس ادارے کی بانی ڈاکٹر نصرت فاروقی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش. عبدالعلیم مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اسسٹنٹ مینیجر ہیں الفت فاؤنڈیشن کے. ذرا ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کامیابی کی کہانی بھی موجود ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ خیال میں ہمیشہ ہر ادارے سے پوچھتا ہوں کہ بنیادی طور پر کوئی ایک چیز ہوتی ہے زندگی میں کہ جو آپ کو انسپائر کرتی ہے، جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے. میں چونکہ مختلف پروگرامز کی ریکارڈنگ کے لیے انٹیریئر سندھ، ساؤتھ پنجاب، بلوچستان، مختلف علاقوں میں جاتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں خود کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جن کے والدین بہت زندگی میں ایک بار ہمت کرتے ہیں تو شاید کسی تعلقہ کے کسی قریب کے اسپتال میں ایک آدھ بار لے جاتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ٹیسٹ کروائیں اور یہ کریں، اس کے بعد پھر ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی. بچہ بیچارہ بیمار گھر پہ ہی پڑا رہتا ہے. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ ان بچوں کے لیے خیال کیسے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی ٹھیک ہے، میں ہمیشہ یہ سٹوری سناتی ہوں سب کو کہ جب کوئی کام اللہ تعالیٰ نے کرانا ہوتا ہے نا تو وہ یوں ہوتا ہے. میں 2009 میں US سے واپس آئی تھی فیلوشپ کر کے، اینڈ آئی ہیڈ اے لاٹ آف ٹائم ایٹ مائی ہینڈ بیکاز پریکٹس ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ایک بچہ مجھے سوات سے ریفر ہوا تھا، اس کے دل میں سراغ تھا. ون آف مائی فرینڈ ریفرڈ اٹ ٹو. تو میں کہا، اس نے کہا بچہ مر جائے گا، باپ بہت رو رہا تھا. تو میرا پہلا رپلائی تھا کہ بچے کو تو نہیں مرنا چاہیے انشاءاللہ. سو اس نے ہمیں رپورٹس بھیجی، اس کے دل میں سوراخ تھا. ہم نے سرجن کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ لگیں گے. 3 لاکھ 2009 میں ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی، میرے پاس تو نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر فیملی افورڈ نہیں کر سکتی تو ہم ایسا کرتے ہیں 50% ڈسکاؤنٹ کروا دیتے ہیں، آپ 1.5 لاکھ جمع کر لیں. اس وقت 1.5 لاکھ بھی نہیں تھے. تو میں نے 5 دوستوں کو ڈرتے ڈرتے میسیج کیا کہ یہ بچہ ہے، نان افورڈنگ ہے اور اس کا آپریشن ہونا ہے. آپ یقین کریں آدھے گھنٹے میں پیسے آ گئے. کیا بات ہے! اور جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو وہ 1.5 لاکھ ہی تھے. پھر وہ بچہ آیا، علاج کروایا اور 10 دن میں ہلن ہارٹی واپس چلا گیا. تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ کچھ آسان سا کام لگ رہا ہے کہ ہم کسی سے پیسے لیں اور کسی کا علاج کرا لیں. میرا کیا گیا تھوڑا سا ٹائم. دین وی سیٹ فار 3 months کہ ہم کیسے کریں، کیا کریں. بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا، سینئر سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ جب آپ نے کمپلیکس سرجیکل کنڈیشن اٹھائی ہے تو پھر آپ اسی پہ کام کریں. سو ہم نے الفت بنائی. الفت کا جو نام ہے وہ ہے یونیفائڈ لائسنس فار پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایڈوانس ٹریٹمنٹ، اور اس میں ہم ایڈوانس ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پروموشن آف ہیلتھ بھی کرتے ہیں. اچھا جی، تو یہ تو کمال بات ہے. ذرا ہم عبدالعلیم مغل صاحب سے بات کریں. مغل صاحب یہ فرمائیے گا آپ کا چونکہ بڑا تجربہ غالباً 15 سال NGO سیکٹر میں. جی، مطلب میرا اوور آل پروفیشنل ایکسپیرینس 15 ایئرس کا ہے، اور میں مارچ 2021 سے الفت کے ساتھ ہوں. زندہ باد. اور ہم جو الفت کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس میں ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہم کراچی کے جو ایسے ایریاز جہاں پر ہیلتھ کی سہولیات کم ہیں اس میں ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہیلتھ کیمپ لگائیں، اور وہاں کے جو سلیکٹیو ایریا ہے اس میں ہم تمام جو بچے ہیں وہ ایمونائزیشن ان کی جو ہے وہ مکمل ہو سکے، اور پھر جو صحت کی سہولیات کی جو کمی ہے وہاں پر وہ پوری ہو سکے. ڈاکٹر صاحب یہ میں واپس بھی آتا ہوں، اگر آپ پلیز ناظرین کو بتا سکیں کہ جو ہمارا جن علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہے اور ان کا اسپتال تک پہنچنا بہت مشکل ہے، تو اصل پرابلم تو یہ ہے کہ وہاں جا کر ان بچوں کے حالات دیکھے جائیں، اندازہ کیا جائے کہ کس بچے کو سرجری کی ضرورت ہے. تو یہ اس سلسلے میں بھی الفت فاؤنڈیشن کچھ کیمپس یا؟ بالکل، ہم 2 طریقے سے ہمارے کیمپس ہوتے ہیں. ایک تو ہم پوری کوسٹل بیلٹ میں پاکستان نیوی کی کولیبریشن کے ساتھ کیمپس کرتے ہیں. اور یہ اکیلے تو نہیں جا سکتے، علاقے بھی بہت عجیب ہیں کہ وہاں بالکل مشکل ہے، نیوی کے ساتھ جانا بھی بڑا مشکل ہے. جی ہاں. سو ان کی کولیبریشن ہے ساحل ویلفیئر ایسوسیشن، پاکستان نیوی اینڈ الفت، اینڈ وی ڈو میڈیکل کیمپس ریگولرلی راؤنڈ دا ایئر. دوسری بات جو علیم کہہ رہے ہیں، کراچی کے وہ علاقے جو کہ بالکل پسماندہ ہیں، جہاں پہ امیونائزیشن کا نام سن کے لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں، ہم وہاں تک جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ڈیپر انسائڈ سوسائٹیز میں پینیٹریٹ کر کے میڈیکل کیمپس کرتے ہیں 3 کے. اس میں پھر خواتین، بچے، بوڑھے جو بھی آنا چاہے
पहला कैंप होता है जनरल कैंप, सही, फिर दूसरा उसमें होता है जनरल वुमेन एंड चिल्ड्रन, Okay. थर्ड कैंप होता है स्किन एंड आई, बिकॉज आंखों के मसले बड़ों में हैं। बिल्कुल सही। तो जब आप किसी की आई साइट ठीक करवा दें या किसी बच्चे का इलाज करवा दें बिल्कुल। तो और क्या और चाहिए। ऐसा ही एक बच्चा हमारे साथ मौजूद भी है बिल्कुल, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माइक जरा करीब कीजिएगा। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? क्या नाम है साहिबजादे का? इसका आसिफ नाम है। आसिफ। और क्या उम्र है माशाल्लाह इनकी? इसका 8 साल उम्र है। तो इनको मुझे बताया गया जी कि इनके दिल का इनको आर्जा लाहक था, दिल में सुराख जिसे हम उम्मी तौर पे कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई 2021 में, और अब माशाल्लाह क्या बात है, ठीक है अब ये खैरियत से है। शुक्र है, अभी बेहतर है। तो क्या जब आपको पता चला कि इसको दिल का प्रॉब्लम है तो उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है, ज़ाहिर चूँकि उसकी बड़ा महंगा इलाज है, तो उस वक्त क्या सोचा था, क्या परेशानी आपको लाहक हुई थी, और उसके बाद फिर किस तरह से उल्फत के पास आए आप? परेशानी तो बहुत था, लेकिन मेरा बानी है कि उल्फत तो की तरफ से, और ये मैडम जी हाँ, डॉक्टर नुसरत साहिबा की तरफ। तो आपको पता कैसे चला कि इनके पास जाना चाहिए? डॉक्टर साहिबा की तरफ से तो इन लोगों ने हमारा इस बच्चे का इलाज किया और बहुत कामयाब ऑपरेशन हो गया इसका, बच्चा भी बेहतर है। ओके माशाल्लाह। सही है। अभी तो अभी स्कूल वगैरह जाना शुरू किया इसने? अभी स्कूल चलते हैं। अच्छा, चले, अल्लाह ताला इसको बहुत कामयाब करे। और ज़ाहिर है हम सब जानते भी हैं और ये हम कहते भी हैं कि अगर बदकिस्मती से कोई भी एक ऐसा बच्चा है जो इलाज के बग़ैर या सर्जरी के बग़ैर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और हम साहिब औलाद होते हुए हमें ज़ाहिर इस बात की बड़ी तकलीफ़ होती भी है और महसूस भी करनी चाहिए कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर या वतन अज़ीज़ के अंदर कोई एक ऐसा बच्चा ना हो कि जो इलाज के लिए पैसे ना होने की वजह से चला जाए। तो ये ज़रा बताइएगा कि मॉडल क्या है, फ़ंड्स, जिस तरह डॉक्टर साहब ने आगाज़ में कहा कि इनिशियली तो ज़ाहिर दोस्तों से ये सिलसिला शुरू हुआ, तो अब इसके लिए बड़े फ़ंड्स दरकार होंगे, तो उनका इंतज़ाम किस तरह से होता है? बिल्कुल, हमारे मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं, मोड्स हैं जिसको हम यूज़ करते हुए इसके डोनेशंस कलेक्ट करते हैं, जिस तरह ईमेल्स हो गया, मेल्स हो गई, उसके अलावा हमारे जो अपने कैंपेन्स हैं वो भी चल रहे होते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, इसका आसिफ जो हमारा बच्चा है, ये हमारा ड्यूरिंग कैंप जो है वो आइडेंटिफाई हुआ था। ओके। और उस वक्त जब ये हमें तो पता इनको चला, अंदाज़ा इसकी था कि रिपोर्ट्स- इसको ये प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल, सारी रिपोर्ट्स वगैरह इन्होंने कराई हुई थी और ये हमें बता रहे थे कि जी ये सारी रिपोर्ट्स हैं। तो हमने वहाँ से रिपोर्ट्स सारी लेके डॉक्टर साहिबा के साथ शेयर की, जो हमारा प्रोसीजर है। तो उस तरह वो प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने उस वक्त स्कूल जाता था, लेकिन डॉक्टर्स के जो इनके थे जिनके पास इनका चेकअप चल रहा था, उन्होंने मना किया था स्कूल जाने से। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सक्सेस स्टोरी है कि ये सेकंड क्लास में है और स्कूल जा रहा है। क्या बात और तो डॉक्टर साहब ये बड़ी हैरत की बात होती है, ज़ाहिर है कि आपका एक प्रोफेशन है और वो प्रोफेशन हम नॉर्मली ये होता है कि ज़ाहिर है हम कुछ अपने लिए अर्न कर सकें, अपनी ज़िंदगी के पहिए को आगे चला सकें, तो लेकिन इस तरह के किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा वक्त भी दरकार है, बहुत ज़्यादा तवज्जो की भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी लेना पड़ती है बसा औक़ात। ऐसा तो अब नहीं हो सकता होगा ना कि कोई बच्चा अगर आपके पास रेफ़र हुआ, इस तरह आपने भी शुरू में कहा, पहले बच्चे के लिए आपने सोचा कि इस बच्चे को मरना तो नहीं चाहिए, तो अब तो हर बच्चे से मुतल्लिक़ ज़ाहिर है यही ख्याल होगा कि नहीं इंशाल्लाह इसको हमने अगर मुमकिन है अल्लाह की रज़ा से तो ज़ाहिर है इसको ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आना है। तो ये मुश्किल होता है अपने प्रोफेशन और बैलेंस करना पड़ता है जी, और इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल। बिकॉज आई एम अ फुल फ्लेज यूरोलॉजिस्ट, आपको सही, पता है, जी हाँ। तो और काफ़ी बिजी अल्हम्दुलिल्लाह में रहते हैं, लेकिन जब विल होती है ना तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते आसान कर देता है। और मेरी असल कमाई तो ये बच्चे हैं, ठीक है, और इतनी स्टोरीज हैं कि बल्कि मुझे कह भी रहे अदील भाई कि वो कुछ 5 बच्चों की कोई शायद कहानी जी, अगर वो आप शेयर कर सकें ना। 2010 फ्लड्स में मैं काम कर रही थी। एक तो मैं डिजास्टर्स में, आपको पता है, काम जी करती जी हूँ। हमने कोविड में हमने एग्जैक्टली बहुत जी। सारी रिकॉर्डिंग्स भी की। तो 2010 फ्लड्स में जब हम मेडिकल कैंप कर रहे थे पाकिस्तान नेवी के साथ, सो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 5 कजन्स, सारे कजन्स थे, 5 बच्चे हिंदू बच्चे थे, उन सब के दिल में सुराख था अल्लाह अकबर। और एक एक करके हमने फिर उनका ऑपरेशन करवाया। सो वन ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड अमरवंती, वो ग्रे कलर की थी, 12 साल की, वो यहाँ से लेके वहाँ तक भी नहीं चल सकती थी। ऑपरेशन के बाद शी टर्न पिंक और हम हर 2 साल पे उससे मिलते हैं, वो होते होते वो मुझसे लंबी हो गई माशाल्लाह। एंड पिछले साल शी गॉट मैरिड एंड नाउ शी इज़ अ मदर। क्या बात है, जिंदाबाद। देखिए ना, अगर इस तरह से आपको अल्लाह ताला वसीला बनाए किसी की ज़िंदगी तब्दील करने का, तो इससे शानदार बात और क्या हो सकती है। बस मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आखिर में आप भी और फिर अलीम भाई से भी हम पूछते हैं कि किस तरह से जो लोग देख रहे हैं एंड अगेन के जिनके बच्चों को अल्लाह ताला ने सेहत अता की हुई है, उसका शुक्राना भी तो शुक्रिया भी अदा करना है। मेरे ख्याल इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता कि आप अपने बच्चों की सेहत का शुक्रिया इस तरह से अदा करें अल्लाह ताला की बारगाह में कि आप ऐसे बच्चों
कि ज़िंदगी का वसीला और ज़रिया मैं बने, कि एक जो मिनट और पैसे ना लूँ। होने की वजह से। प्लीज़ मैं 1 मिनट लूँगी Please, और please, please, please. हमारा अगला जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ। और हम प्रीमेच्योर बच्चों में जो ब्लाइंडनेस हो जाती है, कॉल्ड रेटिन ऑफ जी, प्रीमेच्योरिटी, जी, आरओपी, मुझे बता भी रहे थे। उन बच्चों पे काम करने का पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। उसमें दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन अच्छा, चिल्ड्रन। तो माशाल्लाह। आप किसी बच्चे को नाबीना होने से बचा बचा सकते सकते हैं, हैं। बचा सकते सही। हैं। तो वो पूरा प्रोग्राम हम इस पे अभी इस वक्त प्लानिंग फेज में है। इंशाल्लाह ताला बात है। वो हो जाएगा तो हम 2 साल आई तक एम वो प्रोग्राम श्योर रन इंशाल्लाह, जो करेंगे। अज़्म और हिम्मत है आप में, आपकी टीम में, मुझे यकीन है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। कुछ कहना चाहें आप बिलखुसूस फंड्स के हवाले से? मैं चाहूँगा कि फंड्स ज़रूर, के है ना? लिए बस यही रिक्वेस्ट हम करेंगे कि जिस तरह हमने एक ये छोटी सी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ है, और उसके अलावा जो डॉक्टर साहबा ने बताया, और इसके अलावा और भी हमारे लास्ट 6 मंथ्स में जो हमारे फ्लड में बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बेघर हो गए थे, उसमें हमने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस पर हमने इसी तरह मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स लगाए वो सारे अफेक्टेड एरियाज़ जो थे, और ये डोनेशन की वजह से ही हो पाता है, जो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये रिक्वेस्ट है लोगों से जो हमें देख रहे हैं कि वो हमें इस में अपनी सपोर्ट करें इंशाल्लाह, और ज़्यादा definitely। से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें। बिल्कुल, बल्कि मेरी भी यही दरख्वास्त होगी। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आपने देखा कि ज़ाहिर है अगर एक ऐसी शख्सियत कि जिनको अल्लाह ताला ने अब एक बड़ा मकाम और नाम दिया अपनी फ़ील्ड के अंदर, वो अपना वक्त छोड़ के, कंप्रोमाइज़ करके अपने प्रोफेशन से वो अगर कुछ वक्त दे रही हैं, अगर कुछ एफ़र्ट्स कर रही हैं, तो हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम उनका हौसला भी बने, हिम्मत भी करें और उनकी हिम्मत बंधाएं भी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर हम अपनी औलाद को सामने रख कर देखें और ये सोचें कि पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार बच्चे हैं जो सिर्फ पैसे या फ़ंड्स ना होने की वजह से उनकी सर्जरी हो सकती है, उनका इलाज मुमकिन है, लेकिन सिर्फ चूँकि पैसे नहीं है गरीब माँ बाप के पास, इसलिए वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये हम सब के लिए बहुत ही बाइस शर्म बात होनी चाहिए और हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि एक भी बच्चा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क में ऐसा ना हो, जो मिशन भी है उल्फत फाउंडेशन का, कि जो इलाज के बग़ैर खुदा ना खास्ता इस दुनिया से चला जाए। सो मैं डॉक्टर साहब आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए और ख़ास तौर पे इस बच्चे और जिन बच्चों की कहानियाँ आपने सुनाई और इंशाल्लाह जो बहुत सारी कहानियाँ आगे बनने जा रही हैं लोगों की मदद से, हम चाहेंगे कि आप अपने लिए जो कि उल्फत फाउंडेशन जैसे इदारों को सपोर्ट करते हैं और उल्फत फाउंडेशन की पूरी टीम के लिए भरपूर तालियों में इस सेगमेंट का हम इख्तिताम करेंगे और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह।